Just check whether the screen is visible to you. Hello. Yes, sir. So we'll start with, we'll just revise within 5 whatever the things we have done yesterday, and then we'll go for the next topics. So yesterday we started with unit number 5 related to artificial intelligence. In that, game was the topic. In the game syllabus, in that main points were optimal decisions in the game, that is min max algorithm and alpha beta tunings. तो हमने ये दो चीजें देखी. आगे हम imperfect real decisions and other decisions also will be taken into consideration. वो आज देखेंगे थोड़ा सा. Learning references, reference books we have seen, and we have talked about two different games. One is called as Paceman. ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो Paceman. मतलब there are two ghosts, you can say dragons, you can say, and we need to be away from this ghost in order to avoid the game over, right? ये हमने कल देखा. Multi-agent environments means what? Whenever more than two players, whenever we have more than two opponents at the environment, as well as many players are playing the same game at a time, then that environment is called as multi-agent environment. So there can be two things. One is competitive or cooperative environment. Means what? Always for a game, normally the game is like that, only competitive games are being played, so that in order to create the इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट का काम करते हैं. So normally all the games which we normally play on video or on your laptops, or you can say the video games whatever you are having, they are normally of competitive in nature. One player is playing others another, or two or more players are playing against opponents. For example, PUBG can be the bigger event, or sometimes you have played Contra. In that, two players also simultaneously can be played with the opponents. Right? ऐसे आपने देखा होगा. आगे हमने जाके देखा, there can be two things. What kind of games? So games, one can be predictable opponent and one is called as unpredictable opponent. Normally, जो first games were initialized, at that time the algorithms were fixed. वो सही same ही थे. Then afterwards, the people or the players who were playing the game automatically got fed up with the games. Means what? Whatever the structure of the game was, it was being completely learned by that particular opponent. क्योंकि क्या होता है, एक ही गेम बार बार खेलने के बाद आपको समझ में आता है कि उसमें नूक एंड कॉर्नर्स कहाँ पे हैं, या फिर उसमें आराम से आप जीत जाओगे, बिकॉज यू नो द थिंग्स, वेयर इज द पॉइंट्स टू बी अर्न, वेयर इज द ड्रैगन, और समथिंग लाइक दैट. सो static games are not that much preferred now. We require unpredictable opponents that sometimes with the help of the opponent it should able to act. So ऐसे गेम्स अभी डेवलप होते हैं और वही अभी अच्छे लगते हैं सबके लिए. तो हमने देखे आगे परफेक्ट इंफॉर्मेशन किसमें मिल जाती है हमें, चेस और चेकर्स में, या फिर ऑथोलो करके गेम में. वी नो दैट वी हैव 8x8, वी हैव द, यू कैन से द चेस बोर्ड, एंड ऑटोमेटिकली विद द चेस बोर्ड हमें पता चल जाता है कि आगे वाला अपोनेंट कैसे खेलेगा. बट अगेन देयर आर सम कॉम्बिनेशंस इन दैट चेस आल्सो. या फिर इफ यू गो फॉर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बैटलशिप्स कैन बी द बेस्ट एग्जांपल, और पोकर और स्क्रैबल, बहुत सारे गेम्स हैं जहाँ पे इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है. इम्परफेक्ट का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन अपोनेंट्स को हम कैसे खेलते हैं उसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली द algorithm behind it will be changed, and accordingly the opponents will be coming, or the dangers which are there on the screen, they are coming in front of that opponent. So in order to create the interest, जैसा player खेल रहा है, if the player is a very normal player, automatically normal things has to come in front of you. और जो अगर प्लेयर बहुत ही टफ खेल रहा है, ऑटोमेटिकली बिगर थिंग है, मतलब उसको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए दैट एनवायरनमेंट हैज टू बी मेड, देन एंड देन दैट गेम विल बी सक्सेसफुल. ठीक, वैसा ही पबजी एग्जांपल है आपके सामने. नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कशन किया था कि व्हेन टू हैव -1, व्हेन टू हैव +1 टू बी डिस्प्लेड. मतलब +1 मतलब इफ अ प्लेयर इज विनिंग द गेम, +1 हैज टू बी डिस्प्लेड. +1 का मतलब होता है योर गेम इज बीन वोन, और यू हैव वोन द गेम. ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जानी चाहिए. इफ इट इज -1 तो गेम ओवर आ जाना चाहिए. तो दिस इज द बैकएंड में जो चीजें चलती है उसके बारे में मैंने आपको चीजें बताई थी. ठीक है. डिटर्मिनिस्टिक गेम में मैंने आगे जाके आपको थोड़ा सा एक चीज बताई, जैसे कि
इफ यू सी द स्ट्रक्चर हियर, मैंने इसके बारे में बताया कि ट्री स्ट्रक्चर कैसा होता है. इफ यू फॉलो सम स्टेप्स एंड अल्टीमेटली यहाँ पे देख सकते हो ट्रायंगल है. इफ यू गो टू द नेक्स्ट ट्रायंगल, green signals are there, means whenever you move through the green signals or the green boxes inside a game, automatically the chances of winning is there. And if you just miss the place, अगर आप गलती से किसी अदर बॉक्स में चले गए, automatically there is a loss of the game. So what are the rules, what are the actions need to be done by the player, ये सभी हमें whenever we are doing the programming it has to be thought, उसको प्रोसेस देना चाहिए and then it has to be developed. ठीक, ये हमने कल देखा. आगे जाके हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इटरेशंस अ पर्टिकुलर कंप्यूटर हैज टू मेक फॉर अ सेकंड मूव. अभी नॉर्मल चेस का अगर गेम लो तो 8 बाय 8 का आपके पास 8 सेल्स होते हैं, 8 सेल्स रो वाइज, 8 सेल्स ऑन द कॉलम साइड, इट बिकम 64. So every time the computer has to search 64 columns, right? 64 combinations it has to do, and if you take the combinations, so every time the computer has to think about 64 different algorithms every time for a single move. तो क्या होता है कि 64 moves नहीं हो सकते किसी चेस के लिए. There can be thousands of moves because depending upon the opponent, क्योंकि opponent भी यहाँ पे unpredictable है. opponent मतलब हम जब खेलते हैं कंप्यूटर के साथ, they are also unpredictable. हम क्या खेलेंगे उसको तो पता नहीं होता. So depending upon the step, the algorithm has to change. So in order to save the time, we are removing some of the algorithms. That technique is called as pruning technique, because our computer has some RAM in it, and that RAM is not supporting all the algorithms to run simultaneously on the same computer. So what we are doing is we are cut shorting some of the algorithms or some of the programs from the computer, and only some programs are run, because the thing is the running of the complete program और जो भी programs हमने हटाए हैं, or if you remove also, it will not affect the quality of the program or quality of the game. तो यही पे हमने ये बताया pruning का मतलब क्या होता है. Makes the search more efficient by discarding portions of the search tree that cannot improve the quality result. ये मैंने आपको कल चीजें बताई. ठीक है. एक टिक टैक टो का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, क्रॉस जीरो करके दिखाया था. एंड व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस. ये 9 सेल्स हैं, तो पहले वाला अपोनेंट एक सेल खेलेगा तो 8 रहेंगे, तो आगे वाला 8 सेल्स में कहीं पे भी डाल सकता है. उसके बाद 7 सेल्स रहेंगे, फिर 6, फिर 5, ऐसे करके अल्गोरिदम चेंज होते जाएगा. अल्टीमेटली द गेम कैन बी ओवर डिपेंडिंग अपॉन, इट कैन बी टाई. टाई मतलब 0 आ जाएगा, -1 मतलब या तो आप लूज हो जाओगे या फिर +1 हो जाएगा, तो इट यू वुड बी विनिंग. विनिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑल द रोज हैज टू बी फिल्ड बाय द सेम कंपोनेंट. मतलब एक्स है तो एक रो में वही आने चाहिए या फिर एक डायगोनल में वही आने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज विन ऑफ दैट पर्टिकुलर अपोनेंट. ये हमने कल देखा. मीन मैक्स एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको बताया कि 4 स्टेप्स में ऑलरेडी मीन मैक्स एल्गोरिथम डिसाइडेड होता है कि हाउ वी आर प्रोनिंग द टेक्निक, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं गेम को. तो जैसे कि जनरेटेड ट्री कंप्लीटली, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप द लॉजिक इन फ्रंट ऑफ यू कि गेम में हमें एक्चुअली करना क्या है, उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है. मतलब अनलेस एंड अंटिल वी डू नॉट नो द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ गेम, वी कैन नॉट डेवलप अ गेम, राइट? बिकॉज इट शुड नॉट गो इन एन इन्फिनाइट लूप, है ना. कुछ गेम में ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स इफ द की इज प्रेस, गलती से हम किसी और स्टक कर जाए. जब अगर आप पहले गेम खेलते होंगे, मारियो खेलते होंगे या फिर टैंक करके गेम आता था, समटाइम्स इट कैन हैपन दैट योर वीडियो गेम गॉट स्टक. स्टक मतलब क्या होता था, कुछ भी नहीं दिखता था स्क्रीन के ऊपर या फिर उसी जगह पे स्क्रीन अटक जाती थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? द एल्गोरिदम, गलती से हम उस बॉक्स में चले गए, एंड इन दैट बॉक्स automatically if the component is going, automatically it goes in the infinite loop, it will not come back. And यहाँ पे क्या होता है कि continuously that program will run, it will move in the same direction. ऐसा बहुत बार हो चुका होगा. वही चीज आपको रिपीट आपको आपके सामने आ जाएंगी. that is called as infinite loop. इसीलिए गेम डेवलपिंग was in initial stage previously, now it has been developed. आपको एंड पता होता है ऑलमोस्ट, लेकिन end has to be there, otherwise your computer can be got hang, because वो completely infinite loop में चला जाएगा and it will not give any of the results in front of you. तो ये मैंने min max का algorithm आपको कल बताया था. सारी steps में होता है कि हमें ट्री बनाना है, गेम ट्री. ऐसा स्टेप होता है टर्मिनल एंड एंड, स्टार्ट एंड एंड टर्मिनल. उसमें भी पहले मैक्स टर्मिनल लेना पड़ता है. मैक्स मतलब क्या होता है, कंप्लीटली द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, स्टार्ट एंड एंड.
उसके बाद हमें कट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल -∞ to +∞ अगर हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, एंड उसके बाद 2 to +∞, दिस कैन बी द रेंज, और नेक्स्ट विल बी 3 to 4 कैन बी द रेंज। ऐसे करके हम कम करते जाते हैं, एंड ऑटोमेटिकली वी आर मूविंग अहेड इन द गेम, एंड अल्टीमेटली इट विल बी द सेम प्लेस। जैसे कि एक मैंने आपको बताया था, वन प्ले ऑफ अ गेम मीन्स व्हाट। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको एमसीक्यू में, व्हाट इज वन प्ले ऑफ अ गेम, इसका मतलब होता है एक दो अगर प्लेयर है तो एक एक प्लेयर का एक एक बार चांस हो चुका है खेलने का, उसको बोलते हैं वन प्ले। मतलब एवरी अपोनेंट इज प्लेइंग वंस, दैट इज कॉल्ड एज वन प्ले, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक क्रॉस किया है, उसके बाद 0 भी डाल दिया है, मतलब नेक्स्ट अपोनेंट हैज आल्सो प्लेड, सो सच टाइप ऑफ प्लेइंग इज कॉल्ड एज वन प्ले। गेटिंग? तो 2 प्ले में क्या हो जाएगा, 2 बार खेलेंगे, दोनों अपोनेंट 2 बार खेलेंगे। 3 प्ले में क्या हो जाएगा, 3 बार, 4 बार, लाइक दैट। तो ये मुझे कहने का मतलब क्या है, वन प्ले का मतलब क्या है, आगे जाके मैं बताने वाला हूँ। वन प्ले, हाउ मच अमाउंट ऑफ गेम, मतलब कैसा सोचना है हमें, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस। So whenever you develop the thing related to the computer games, at that time, कितने number of ahead of steps the computer has to think. Understand? One play, क्योंकि उसको सिर्फ ऐसा सोचना है कि अगर मैं ये मूव खेलता हूँ तो आगे वाला ये मूव खेलेगा। Whether it is sufficient? No, it's not sufficient. अगर उसको सिर्फ एक इतना ही पता है कि अगर if I play this game at this point, at this, for example, chess board में अगर मैं बिशॉप को यहाँ पे रखता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कंप्यूटर विल बी लाइक दिस, इतना ही सिर्फ कंप्यूटर को पता है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड गेम। अंडरस्टैंड? तो हमें 2 प्ले में जाना चाहिए कि अगर ये ऐसा खेलता है दो स्टेप के बाद तो क्या करेंगे, अगर ऐसा सोचते हैं कंप्यूटर, या फिर 3 स्टेप के बाद अगर वो ऐसा करेगा तो व्हाट हैज टू बी दी 4 प्ले के बाद। नॉर्मली अप टू 4 प्ले, मतलब 4 स्टेप आगे कंप्यूटर भी अगर हमारे साथ है, देन ऑल्सो वी कैन इजिली बीट द कंप्यूटर। अंडरस्टैंड? गेटिंग? Normal computer can be easily beat by, hello, हाँ सर, हाँ सर, सर ते नाशिकच्या मॅडम आहेत, माधुरी देवरे म्हणून, तर हां, तर त्यांनी आपल्या लहान yes, hello, whether my voice is clear now, students? मुझे फोन आ गया था। Hello, whether my voice is clear, students? Yes, sir. Okay, thank you very much. तो वन प्ले में बारे में बात कर रहा था। तो 1 play, 2 play, 3 play, 4 play. So automatically up to 4 play, if the computer is able to think, then also we can say that we can easily beat the computer. इसका मतलब ये हो गया। So we need to move ahead. तो हमें computer has to think up to 6 play, 8 play, 12 play तक वो अगर सोचता है, then and then the computer is in a comfortable position in order to beat the humankind. Normally 4 play तक easily a person can beat the player, right? Next thing can be, we can say, if you go for 6 play or 8 play, 8 play can be called as one of the tough competitor of the computer. 8 play तक हम आराम से लैपटॉप में रख सकते हैं। But if you go for 12th play, 12th play का अगर चला गया तो ऑटोमेटिकली इट कैन बीट द बेस्ट ह्यूमन काइंड, और जो भी सबसे ज्यादा उसमें गेम में माहिर है, दैट कैन ऑल्सो बीट दैट। So that can should be the level, but for that level, the RAM and everything has to be very nice. Next is mean max example. You can see A11, A12, A13, 3, 12, 8 ऐसे करके यहाँ पे दिया है। मीन मैक्स वैल्यू के बारे में मैंने आपको ये 2-3 चीजें बताई थी कि हाउ वी आर मूविंग अहेड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। 2 अलग अलग चीजें मैंने कंप्यूटर के बारे में बताई कि whenever we are designing a game, at that time 2 things has to be considered. One is the time required for the response, and second is the space complexity of the response. दोस्तों space complexity मतलब कितना उसको space लग रहा है in order to save that game, in order to take the another move of the game in the computer, because computer has a normal memory, and beyond that memory
the computer cannot move. For example, a typical computer has 1 terabyte memory. मतलब अगर for example it is having 1000 gigabytes, or you can say GB तक उसका मेमोरी होता है, या फिर 100 GB का होता है, या फिर 200 GB का होता है. जो नॉर्मल हमारे लैपटॉप में होता है, इट इज अबाउट 100 GB या फिर 200 500 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कॉन्फ़िगरेशन वी आर टेकिंग इनसाइड द लैपटॉप. उससे ज्यादा तो हम नहीं ले सकते हैं. इन दैट ऑल्सो some part is being taken by operating system. OS में already ले चुका है, and some of the other programs it has already taken. So we need to consider other things also whenever design of the games. Right? So space is also a limited factor. The resource limits, this is a very important thing. Alpha minus beta. This one is alpha minus alpha minus alpha minus infinity to plus infinity. If you just see, then automatically you can see we are starting with the highest amount of you can say the range, that is minus infinity to plus infinity, and then minimum to maximum value. So 3 minus infinity to plus infinity, 3 plus infinity we are able to tell. आगे जाके हम 3,3 ऐसे करके क्या करते हैं हम, we are ranging, we are decreasing. For example, पहले minus infinity to plus infinity था, we will try to reduce it by some factor. यहाँ पे 3 to plus infinity हमने automatically reduce किया. Again आगे जाके हम 3 to 3 कर लेंगे, so automatically we are changing this thing. So it is called as alpha minus beta. Alpha minus beta means what? We are taking the maximum value as well as the minimum value, and we are so maximum end to end value if you are subtracting, automatically it has to be reduced and finally it will become very less. ऐसे करके हम करते हैं, automatically this can be very easily done. तो ये कुछ चीजें मैंने कल आपको बताई थी, और उसके बारे में प्रॉपर्टीज भी आपको बताई थी कि प्रूनिंग जो होती है, मतलब discarding some of the algorithm will not affect the final result. Good move order improves the effectiveness of the pruning with perfect ordering time complexity. और बीटा m by 2 and double depth of search, ऐसे करके हमने आगे किया था. Imperfect real time decisions हैं. Suppose we have 100 seconds explore 10 to the power 4 nodes per second. तो आगे जाके हम ये चीजें करने वाले हैं. इवेल्युएशन ऑफ फंक्शंस, अभी एक अनदर पार्ट में मैंने आपने कल से एक्सप्लोर स्टार्ट करना किया था कि व्हाई नॉट टू हैव अ फंक्शन, राइट. फंक्शन यहाँ पे f1 का मतलब होता है वन एल्गोरिदम, f2 का मतलब होता है अनदर एल्गोरिदम, एंड fn का मतलब होता है nth एल्गोरिदम. सो यू कैन सी, अभी मैं इसका आई विल टेक दिस थिंग highlighter, I will take just I will consider the highlighter, it will be just taken. Whenever you take the move w1, so if it is w1, automatically function 1 has to run. w2 अगर move होता है तो function f2 has to run. ऐसे करके मतलब कैसा होता है कि whenever a black has to move, अगर black ने कुछ movement कर दिया आगे, automatically white has to move, and that white is taken by the computer. So white has number of combinations, मतलब 64 other combinations are there in front of it. So always a function has to be there. If this is the move, this program has to run. If अगर black ये खेल जाता है तो automatically this function has to move, or this function is there, then that function has to run. So depending upon the function, this can be the probabilities of the, or you can say the computer, right? That has to be always considered. So whenever we are taking the things, but whenever we are talking about games, the games में क्या होता है, अलग अलग games का अलग अलग importance होता है, और you can say a strategy अलग होती है. Understand? If you just take the example of chess now, chess में if you take जो प्यादा जो बोलते हैं उसको pawn बोलते हैं, उसको सबसे least priority दी जाती है. Understand? One अगर मैं मान के चलूँ, but it doesn't mean that it is through experience. Understand? This one is also important. Pawn is also an important thing. But according to our thing, for example, आपके पास bishop है ना, और pawn है, मतलब आपके पास एक you can say उसको ऊंट बोलते हैं ना, knight को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, you can say घोड़ा जो होता है उसमें, right? Like that. So you will give the priority what? प्यादा को ज्यादा priority देगी, या फिर जो घोड़ा उसके अंदर होता है, that will be priority depending upon. So we will give the priority to the whatever the big contents are there, or we can say the big if it is घोड़ा हो सकता है, ऊंट हो सकता है, या फिर king is there, queen, that will be the more priority as compared to जो आगे जो होते हैं उनको priority कम दी जाती है. So depending upon that we are doing it, but it is through the experience.
मैंने 1 दे दिया, नाइट को 3 दे दिया, बिशॉप को अगेन 3 दे दिया, रुक को 5 दे दिया। रुक मतलब जो हमारे पास जो हाथी होता है उसको। क्वीन 9, क्वीन इज गिवन द हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम वजीर बोलते हैं, उसको सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं, बिकॉज इट कैन मूव anyway, either diagonally or either vertically, upward, backward, like that. Only it cannot move in like a knight. ऐसा मूव नहीं हो सकता, मतलब 2.5 steps नहीं मूव होता, बाकी का वो सब कुछ कर सकता है। So it is given the maximum point. ऐसे करके, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी ऑफ द गेम इज, चेस का गेम में होता है कि किंग सेफ्टी। अगर किंग ही अगर मर गया तो ऑटोमेटिकली योर गेम विल बी ओवर, लाइक दैट। तो ये आपको फैक्टर ध्यान में रखने पड़ते हैं फॉर द कंप्यूटर ऑल्सो एज वेल एज फॉर द अपोनेंट ऑल्सो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप आगे, यहाँ तक तो मैं कल आ गया था, अभी यहाँ से आगे निकलते हैं। सो आई थिंक सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, यस, लेट अस सी। I think okay, all the students have joined, good. तो हम आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। Just the screen has to be larger. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कटिंग ऑफ सर्च मतलब मीन मैक्स कट ऑफ इज आइडेंटिकल टू मीन मैक्स वैल्यू एक्सेप्ट टर्मिनल इज रिप्लेस्ड बाय कट ऑफ एंड यूटिलिटी इज रिप्लेस्ड बाय एबल। So does it work in practice? B raised to m is equal to 10 to the power 6, b is equal to 36, m is equal to 4. 4 ply look ahead is a hopeless chess player. मैंने आपको बोला कि अगर 4 play ही है, मतलब it is able to think 4 steps ahead. If a computer is able to think 4 steps ahead only, then that is called as a hopeless chess player. Automatically nothing can be done. We can easily beat that such computer, right? So 4 ply मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वैसा सोचता है, जो पहली बार खेल रहा है वो ऐसा सोचता है। 8 ply का मतलब होता है टिपिकल और कंप्यूटर, राइट? इट इज लुकिंग 8 steps ahead. Automatically it is little bit difficult for normal players to beat computer. आप देख सकते हो। Now whenever you can say if the computer is 12 play, मतलब it is ahead than 12 play, मतलब 12 steps ahead of you, 12 steps आगे वाले अगर वो सोच रहा है, तो it can be called as, it can beat world champion, that is called as Kasparov. यहाँ पे आप देख सकते हो 12 प्ले यहाँ पे दिया है, तो 12 play is now able to beat, you can say, Gary Kasparov also. So that is the complication. Now it is more than that, 12 से भी आगे चला गया। अभी ये तो 1997 का केस था कि 12 प्ले मतलब 12 स्टेप्स अहेड वो सोचता था, इसलिए वो क्या डीप ब्लू जो सुपर कंप्यूटर है, तो ऑटोमेटिकली इट वाज एबल टू बीट वर्ल्ड चैंपियन। बट नाउ इट इज मोर अहेड, उससे भी ज्यादा आगे चला गया। नाउ इट इज अराउंड 2022 उसके। नाउ इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन काइंड टू बीट नाउ सुपर कंप्यूटर्स। ये मैंने आपको चीजें कल भी एक्सप्लेन की। चेकर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि चेकर्स वाला पहला गेम आया था चेस का, तो वहाँ पे 40 इयर्स बैक और 50 इयर्स बैक, अराउंड 1951-52 में आया था। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो इट वाज नॉट अ थिंग विच वाज प्रेडिक्टेबल, मतलब अनप्रेडिक्टेबल उसमें कुछ नहीं था। एवरीथिंग वाज प्रेडिक्टेबल फॉर दैट चेकर्स बिकॉज एल्गोरिदम उसके फिक्स थे। सो अपोनेंट अगर वो ज्यादा खेलता है उसके साथ गेम 1 by 1 100 टाइम्स अगर खेल जाता है, तो ऑटोमेटिकली द प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन ऑल्सो इजिली इसको, मतलब जो भी नॉर्मल प्लेयर है वो भी आराम से इसको गेम को हरा सकता था। नाउ चेकर्स इज सॉल्व, ये आप बोल सकते हो, चेकर्स इज नाउ सॉल्व, मतलब कोई भी इसको अभी बीट कर सकता है। दैट इज द थिंग। कोई भी मतलब नॉर्मल जो थोड़े से अपग्रेडेड है इन द मेन ऑफ चेस, वो आराम से अभी बीट कर सकते हैं। नाउ एक आया था कि चिंगनुक ended 40 years ring of human world champion Marin Tinsley in 1994. मतलब he was not you can not say that the topmost player, but it's considered as a world champion. तो 1994 में ये जो कोड हुआ था, it was able to beat that Marin Tinsley also. तो आगे आगे जैसे आगे मैंने बोला कि डीप ब्लू ने 1997 में गैरी क्रॉस्पोरो को हराया था, किसने? 6 गेम मैच में। कितने मैचेस हुए थे? 6 मैचेस हुए थे। So in a 6-game match in 1997, Deep Blue examined around 200 million positions per second. देख सकते हो आप, what is the capacity of supercomputer? 200 million positions per second. 1 million का मतलब कितना होता है? Around 10 lakhs. हाँ, तो 10 into 200 है ना, 10 lakhs into 200 इतना कैपेसिटी था उसका सोचने का by looking at only 1 second. So that is the capacity of that computer. So it was very easily he could able to beat Gary Kasparov. Evaluation and undisclosed method of extending some lines of
40 प्ले। तो यहाँ पे कितना आ गया उसने, देख मैंने आपको बोला जो चेस जो बनाया था इट वाज अबाउट 40 प्ले, मतलब 40 स्टेप अहेड वो सोचता था। अंडरस्टैंड, 40 स्टेप्स में नॉर्मली गेम खत्म हो जाता है चेस का। नाउ हियर द कंप्यूटर इज लुकिंग 40 स्टेप्स अहेड, राइट? 40 स्टेप्स अहेड वो सोच रहा है फॉर अ कंप्यूटर। एंड नाउ करंट प्रोग्राम्स आर इवन बेटर इफ लेस हिस्टोरिक। ओथेलो करके एक गेम आया था 1997 में, लॉजिस्टियो डिफीटेड ह्यूमन चैंपियन बाय 6 गेम टू नन। तो ये कंप्यूटर ने भी 6-1 में 6 गेम हुए थे, उसमें से एक भी जीता नहीं था ह्यूमन जो भी खेले थे उनके अगेंस्ट। एंड यू कैन से विच आर टू गुड, मतलब कंप्यूटर्स आर नाउ टू गुड। ऐसे ही हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउ ह्यूमन चैंपियंस, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टेटमेंट क्या दिया है, ह्यूमन चैंपियंस रिफ्यूज टू कंप्यूट अगेंस्ट द कंप्यूटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नाउ इतना अभी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो चुका है कि नाउ जो चैंपियंस हैं, दे कॉल्ड देमसेल्फ एज अ चेस चैंपियन, they also refuse now to play against the computer. Why? Because now they are too good, their intelligence is too good and it cannot be hampered. तो ये है, ऐसा है। So you can see neural net learning again ये आ गया था and then we are considering that. So you will be expected to know क्या क्या चीजें थी, जैसे कि मीन मैक्स ऑप्टिमल गेम, अनदर इज अल्फा बीटा प्रूनिंग, ये मैंने आपको बताया, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन दैट इज कट ऑफ सर्च, एज वेल एज एक्सपेक्ट मिनिमम मैक्स 5.5। तो टाइप्स ऑफ गेम में अगर देखा जाए तो दो चीजें होती है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन चेस एंड बैटलशिप के बारे में। तो दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ इट, टिपिकल assumption जो मैंने आपको ये सर्च में आपको बताए थे। आई विल जस्ट गो अहेड एंड आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाना चाहता था टू प्ले गेम कैसा होता है, उसका ट्री कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब 2 स्टेप्स अहेड व्हेनेवर अ कंप्यूटर इज एबल टू थिंक। मैंने क्या बताया अभी, गैरी कास्परोव को जो जिन्होंने हराया था डीप ब्लू, it was able to play about 40 play, means what, 40 steps ahead as compared to a normal player. Now we are only looking at 2 play game. तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट है, either the player can move here or to this move or this move. अगर ये खेल जाता है तो ऑटोमेटिकली it will has to move in either this direction, this direction, this direction, ऐसा करके दिया है। तो मिनिमम तो हमें सोचना है कि मैक्सिमम ये कहाँ जा सकता है। अंडरस्टैंड, व्हेन अ प्लेयर इज मूविंग द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आ गया, तो सेकंड स्टेप कैन बी मैक्सिमम कैन बी दिस वन, क्योंकि क्या होता है, इट विल नॉट मूव टू दिस 3 पोजीशन एंड 8 पोजीशन। व्हाई? बिकॉज वो उस प्लेयर के लिए उस जगह पे कुछ ना कुछ तो डैमेज होने वाला है या फिर कुछ ना कुछ तो खतरा होता है फॉर द नेक्स्ट मूव, सो इट विल नॉट ट्राई टू प्ले सच मूव। इन वेरी रेयर कंडीशंस इट विल ट्राई टू प्ले सच कंडीशन। सो हमें जो नंबर दिखाया जाता है 12, 14, दीज आर दी मैक्सिमम मूव की वो यही खेलेगा। अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हो कि 12 वाला मूव खेलेगा तो हमें 3 और 8 की जरूरत ही नहीं है। तो इफ यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 3, अगर उसको डायरेक्टली कट ऑफ किया जाए, इफ यू जस्ट कंसिडर 12 ओनली, नॉर्मली 99% ऑफ द पीपल विल प्ले दिस टाइप ऑफ स्टेप्स। तो अगर उसी गेम को कंटिन्यू किया जाए, अगर उसी एल्गोरिथम को अगर रन किया जाए, automatically these steps, other steps can be removed very easily, and automatically we can understand that the 12 play game can be, you can say the 2 play game can be very good and effective also. Okay? So that's what the thing I wanted to tell. तो यहाँ पे 2 play game का एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एक मैं आपको मीन मैक्स डिसीजन के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये सूडो कोड है, मतलब ये वर्चुअल कोड है। वर्चुअल कोड अगर ये रन करना चाहो तो रन नहीं होगा, जस्ट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, है ना। इट इज नॉट इन अ परफेक्ट यू कैन से कंप्यूटर लैंग्वेज, आइदर नॉट इन Python or it is not in C language or like that. It is only the things, it is written in English and only the functions are given inside it, and automatically we can understand how mean max algorithm can be run. ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं, अगर आप थ्योरी एग्जाम लिखते हो तो ऑटोमेटिकली गेटिंग। नाउ यू आर गोइंग फॉर MCQ पैटर्न, so such questions will not arise. How to write a pseudo code for min max algorithm, that cannot be the question for you in the exam, getting? So such questions you do not have to worry. You can see properties of min max. Yes, then optimal, time complexity and space complexity. So what can be the properties of this one? So optimal can be the things, time complexity can be one of the things. मैंने आपको बोला time is important, space is also important, as well as the other things are also important for a computer. So
जैसे कि हमने एक टिक टैक ये जो हमने गेम खेला है, तो उसमें क्या है, 5 लीगल एक्शंस पर स्टेट ऑन एन एवरेज, टोटल 9 प्लेस इन द गेम, 9 स्टेप्स हम खेल सकते हैं। तो अराउंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल, 5 10 to the power 9, it is around 19,53,125 steps. So whenever a computer algorithm has to develop, तो उसको कितने बार उसको सोचना पड़ता है, 19,53,125. That has to be the cell by cell move for that particular computer. तो इतना उसको algorithm के बारे में सोचना पड़ता है, और that move उसको सोचना पड़ता है, और they have to search that particular steps. So that is the thing, very important. अगर वो कंप्यूटर अगर पहला चला जाता है, क्या होता है कि whenever a computer is playing first, क्योंकि whenever you are playing a game with a computer, there are two things which can occur. One can be either computer is playing the first step or the opponent is playing the first step. तो अगर कंप्यूटर पहला स्टेप खेल रहा है, ऑटोमेटिकली एवरी गेम, अगर आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स इफ यू सी, नेवर एवर कंप्यूटर इज प्लेइंग द फर्स्ट स्टेप. अंडरस्टैंड, ओनली द अपोनेंट इज. आपने कभी देखा है कि पहले ही ड्रैगन ने या फिर ड्रैगन के साथ आपका फाइटिंग एंड ऑटोमेटिकली ही इज ओनली प्लेइंग द स्टेप, या फिर व्हेनेवर यू आर प्लेइंग द चेस गेम, ऑटोमेटिकली द चेस is played by the computer first, unless and until we make the setting, unless and until we make the setting, it will never happen. नॉर्मली ये टैंक प्लेयर देखते हो या फिर मारियो खेलते हो, तो पहले ही आपके साथ अपोनेंट खेल जाता है क्या? नहीं. या फिर कंप्यूटर खेल जाता है क्या? नहीं. नॉर्मली डजंट हैपन. व्हाई? द मेन इंटेंशन इज टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इंपॉर्टेंट. अगर यहाँ पे छोटा सा गेम देखा जाए, अगर ये हम ये जो टी-टॉ का ये जो गेम है, जैसे कि हमारा क्रॉस एंड जीरो का गेम है, तो उसको 9 पोजीशंस होती है. अंडरस्टैंड? तो 9 पोजीशंस को एक्सप्लोर करने के लिए उसको 19,53,000 उसको 125 उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है सेल्स. बट अगर वो पहला खेल जाता है तो 9 फैक्टोरियल से कितना आ जाएगा, 3,62,880. उसका एक यू कैन से द टाइम लिमिट और द सेल्स इट हैज टू एक्सप्लोर. अगर वो सेकंड स्टेप खेल जाता है, क्या होता है सेकंड स्टेप में, तो पहला स्टेप तो अगर हमने खेल लिया फॉर एग्जांपल क्रॉस, तो बाकी सेल्स कितने बचे हैं, 8 ओनली. तो उसको क्या हो जाता है, वन सेल इज ऑलरेडी गॉन, तो उसका जो कॉम्बिनेशन उसका हट जाएगा. अंडरस्टैंड? So automatically only remaining 8 options are there, so always the computer goes for the second position. तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना उसका टाइम रिड्यूस हो चुका है. देखो, it is 3,62,000, it is now only 40,000. So what is the tremendous, it has been reduced. So always the computer is playing second unless and until the settings are done, right? So that has to be the exact solution, quite reasonable. चीजें यहाँ तक समझ में आ गई स्टूडेंट्स? Any questions if you are having, you can ask me or you can pin me in between. जैसे कि typical values of infinity or plus infinity and minus infinity is -1 to +1, and x is the for a player and -x is for the opponent. Zero sum करके आता है. Evaluation functions, black to move यहाँ पे होता है, ये मैंने आपको ये चीजें बताई थी. How W1 function 1, W2 function 2 और WN function n. इसका अगर मैं थोड़ा सा और आगे स्टेप लेके जाता हूँ, तो W1 का मतलब होता है नंबर, F1 फंक्शन है नंबर ऑफ व्हाइट क्वींस माइनस नंबर ऑफ ब्लैक क्वींस. सीधा सा मतलब होता है दोनों के पास क्वीन है, दोनों के पास बिशप है, दोनों के पास नाइट है, दोनों के पास ऑन है. तो ऑटोमेटिकली इफ यू जस्ट सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ व्हाइट क्वींस माइनस नंबर ऑफ ब्लैक क्वींस, क्योंकि दोनों का नंबरिंग सेम है. क्वीन को हमने क्या दिया है, सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, 9 नंबर दिए हैं उसको, है ना. W1 9 नंबर दिए हैं उसको, राइट. मतलब जिसको हम ये यू कैन से वजीर जो बोलते हैं, उसको हमने कितने नंबर दिए हैं, 9. तो दोनों माइनस, अगर दोनों नंबर माइनस करते हैं, अंडरस्टैंड, आगे वाले अपोनेंट के पास भी वजीर है एंड द ब्लैक इज आल्सो हैविंग द क्वीन एज वेल एज व्हाइट इज आल्सो हैविंग द क्वीन, दोनों के पास वजीर है. इफ यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 9 minus 9, it will become how much? It will become 0. मतलब both are having the equal chances of winning. But if you take white के पास 9 है एंड एक क्वीन है, एक ही तो क्वीन होती है, व्हाइट के पास एक क्वीन है, लेकिन ब्लैक का क्वीन उसके शायद से बिकॉज ऑफ गलती वो मर गया है, ऑटोमेटिकली 9 minus 0 विल बिकम 9. तो हु इज प्लस में आ रहा है, प्लस इज व्हाइट, मतलब हु आर हैविंग द मोर नंबर ऑफ चांसेस, व्हाइट इज हैविंग द मोर नंबर ऑफ चांसेस ऑफ विनिंग. इसीलिए इसी में व्हेनेवर अ गेम इज प्लेड, व्हाइट इज प्लेइंग और ब्लैक इज प्लेइंग. अभी क्या हो गया, गेमिंग का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. अगर आप चेस खेलते हो तो वहां पे आपने देखा है कि वी डू नॉट वेट फॉर द कंप्लीट गेम टू एंड. अभी का जो स्टाइल है गेम का,
which depends upon how much number of players are remaining with you and time limit is already given. ऐसा गेम आपने देखा है किसी ने कि जहाँ पे चेस बोर्ड खेलते हैं उसके ऊपर देखा जाता है कि उसको टाइम लिमिट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, एंड एवरी मूव हैज टू बी बिटवीन 30 सेकंड्स. अगर 30 सेकंड्स में अगर वो मूव नहीं खेलता है, ऑटोमेटिकली द चांस विल बी मूव टुवर्ड्स द अपोनेंट. एंड व्हाई? बिकॉज चेस इज अ लॉन्ग गेम. अगर हम सोचने लगे तो दिन भर भी सोचे या फिर 10 साल भी सोचे तो वी कैनॉट प्ले द गेम. अंडरस्टैंड? So in order to have the speed inside or to have the results in the chess, what the things are being done, the chances of time limit has been given and how many numbers of players are remaining, depending upon that only the result is being declared. तो ऐसा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ व्हाइट माइनस नंबर ऑफ ब्लैक मीन्स ऐसे करके हम आगे देखते हैं. ठीक है, ये चीज मैंने बताई आपको 4 प्ले, 8 प्ले एंड 12 प्ले के बारे में. वेरी गुड. टिकटॉक गेम, इसका भी गेम का भी ये थोड़ा सा जो भी चीजें मैंने बताया था, वॉट एवर द थिंग्स, ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया था. अब इसका थोड़ा सा एडवांस में, थोड़ा सा ऑल द थिंग्स हैज बीन प्रॉपर्ली रिटन इनसाइड इट, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो. स्टार्ट नोड ये है, उसके बाद ये नंबर 1 स्टेप, उसके बाद आप देख सकते हो 4-2 क्या रिजल्ट आ सकते हैं. So depending upon that, you can select the move, maximum move, minimum move, and you can come up to the results. ऐसे ही है. एग्जैक्ट वैल्यूज डोंट मैटर, क्योंकि नॉर्मली हम जो गेम्स खेलते हैं उसमें एग्जैक्ट वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द क्वालिटी ऑफ द गेम. वी डू नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम द कंप्यूटर इज एक्सप्लोरिंग. कंप्यूटर के बैकएंड में कितना चल रहा है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते. जैसे कि एक सीधा सा एग्जाम्पल है मेरे सामने. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टर्निंग ऑन द स्लाइड्स नाउ. स्लाइड्स आगे आगे कर रहा हूँ या फिर पीछे पीछे कर रहा हूँ. अंडरस्टैंड? It depends upon the response time of the computer, and how much amount of response time computer, it depends upon that you are able to see on the screen. अगर वो कितने सेल्स में जल्दी दिखा देता है हमारा. Now what is the priority of the computer? In order to show the screen whatever I am displaying, it should be the priority. अगर उसको स्कैन करना है कंप्यूटर, अदर if another program is running backend, that has to be priority, has to be less as for the computer as compared to whatever is currently going on. Understand? So depending upon that, the quality of the computer can be. Otherwise what will happen, अगर ये slides अगर move नहीं हो रहे and it is doing another backend programs every time, so what will happen, we are fed up of it and nobody will buy such computer. Okay? ये मैक्स मीन का 2-3 एग्जाम्पल मैंने इसके साथ ज्यादा डाले हैं इन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो आपके स्लाइड्स भी बढ़ जाएंगे. लेकिन वही चीजें जो मैंने आपको बताई, व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा, तो उसके एग्जांपल्स 2-4 बार मैंने थोड़े से डाले हैं, सो दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अल्फा बीटा एग्जांपल्स वेरी इजीली. तो यहाँ पे कंटिन्यूड करके बहुत प्रॉब्लम है, मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपके लिए रखे हैं, सो दैट यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग. आगे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इटरेटिव डीपनिंग. इटरेटिव डीपनिंग का मतलब होता है कि normally a normal computer, it will not go much ahead with the things, that is searching of all the nodes, but whenever we require exhaustive search, some of the programs are there in which there is a compulsion that it has to do the exhaustive search. जैसे कि एग्जाम्पल आ गया कि if you are able to scan a computer, कंप्यूटर को स्कैन करना है फॉर द वायरसेस, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का जो वायरस हम इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस, it has to move into each and every program, each and every word, each and every memory of the computer, and it has to bug out whether how many viruses are there or not. It cannot skip. ऐसा नहीं है कि आप डी को अगर एक बार कर लिया तो सी को करने की जरूरत नहीं है, सी ड्राइव को करने की जरूरत, ऐसा नहीं होता है. अनलेस एंड अनटिल वी स्पेसिफाई, अगर हमें सिर्फ सी ड्राइव ही फॉर्मेट करना है या फिर सी ड्राइव को भी सिर्फ स्कैन करना है, दैट इज अप टू अस. that is the thing which is given by the antivirus. But if you do the search, automatically it will search each and every drive of the computer. So that is called as progressive or deepening search. ऐसे होते हैं. And deepening is normally occurring whenever we are going for high end games. Okay. अभी ये कुछ गेम्स हैं आपके नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम, जैसे कि बैकगैमन. ये अभी मैंने कभी खेला नहीं है चीजें, लेकिन अगर आपको पता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आप खेलते हो घर पे, जो होते हैं ना 6, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड, 6 4 3 2 1, द गेम इज लाइक दैट.
इसके जैसे कि आप सांप सीढ़ी खेलते हो या फिर आप नॉर्मल जो गेम्स खेलते हो तो उसमें यू हैव अ क्यूब, है ना। उसको 6 स्पेसेस होते हैं, 6 उसके 1 से लेके 6 तक उसके ऊपर लिखा जाता है ना। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम उसको उठाते हैं, अभी ये रामायण से लेके महाभारत में ये सब है ना। यूज टू प्ले विद दिस टाइप ऑफ क्यूब्स, और उसके ऊपर फेसिंग के ऊपर लिखा जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दो दो होते हैं, नॉर्मली हम गेम खेलते हैं तो एक होता है या फिर दो होते हैं डिपेंडिंग अपॉन, तो दो खेलते हैं। 6 + 5 हाउ मच, टोटल इज 11 है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 एंड ये 5 है, टोटल मतलब 11। 11 आ रहा है मतलब 11 मूव आगे हमें मूव करना है, दैट इज द थिंग। ये अभी डायग्राम प्रॉपर नहीं है, अदरवाइज नॉर्मली सांप सीढ़ी अगर जब खेलते हो तो ऑटोमेटिकली 1 to 100 ऑल द नंबर्स आर देयर, तो 11 मूव लेके आपको आगे जाना पड़ता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट मूव आता है, अगर 3 + 2 तो 5 आ गया है, तो 5 स्टेप से आगे जाओ, ऐसे करके वो गेम होता है। सो दैट हैज टू बी प्लेड। तो वो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक में आ जाता है, ठीक है। तो डीप ब्लू के बारे में कुछ लिखा है, हाउ द प्रोग्रामिंग वाज डन, 1957 में क्या आया, 1997 में क्या आया, है ना, ये चीज है। ऑल द थिंग्स आर बीन अगेन रिपीटेड एंड डिटेल में लिखा है सब कुछ चीजें, है ना। जैसे कि समरी के तौर पे अगर मैं देखा जाए तो गेम प्लेइंग इज द बेस्ट मॉडल एज अ सर्च प्रॉब्लम। नॉर्मली वी आर सर्चिंग द थिंग्स एंड देन वी आर एक्टिंग। गेम खेलना या फिर गेम बनाना मतलब हमें सर्च करना है कि आगे वाला क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली एल्गोरिदम हैज टू डन। गेम ट्रीज रिप्रेजेंट अल्टरनेट कंप्यूटर्स और अपोनेंट्स मूव, ये तो बताता है। as well as min max is a procedure to choose the moves to assumption that the opponent will always choose the move from the best of them। ऐसे करके एन अल्फा माइनस बीटा एक प्रोसीजर है, कंप्यूटर के अलग अलग एल्गोरिथम्स आपके सामने होते हैं। जैसे कि आगे जाके अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे गेम्स है, ये जीरो सम गेम है ना, जनरल गेम्स होते हैं, टू प्लेयर गेम्स होते हैं या फिर मल्टीपल प्लेयर गेम्स होते हैं। तो ये दिस थिंग्स हैज टू बी अंडरस्टूड। डिटर्मिनिस्टिक गेम्स के बारे में मैंने बताया, सिंगल एजेंट के बारे में मैंने बताया, पेसमैन के बारे में मैंने बताया, अंडरस्टैंड। सो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली। एडवर्सियल गेम्स, मिन मैक्स वैल्यूज, टिक टॉटो का गेम बारे में मैंने आपको ये चीजें आपको एक्सप्लेन की। नाउ यहाँ पे देख सकते हो आप एक डायग्राम दिया है, अंडरस्टैंड, ये जो देख सकते हो आप, ये हाउ द वन प्लेयर इज प्लेइंग, जीरो यहाँ पे डाल दिया, क्रॉस यहाँ पे डाल दिया, अंडरस्टैंड, ऑटोमेटिकली ये गेम खेल रहा है। तो थोड़ा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये कैसे खेला जाता है और उसका मीनिंग क्या है बैक एंड, है ना। तो अगर आप देख लिया whatever the things on the screen, automatically you can easily give any of the questions related to this type of game. They will not ask you any hi-fi end games, right? Because that is not expected also, because we are not an actual very good developer regarding developing a particular game, but at least the logic behind the game can be easily understood for a particular game and we can easily go ahead with it। जैसे ऑप्टिमल प्ले आ गया, ये मीन मैक्स मैक्सिमम सर्च एंड एक्सेट्रा, ये तो वही हो गया जो मैंने आपको बताया था, मीन मैक्स एल्गोरिदम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम। ये छोटा सा मैंने आपके सामने एक डायग्राम रखा है कि एक ये जैसे कि एक सीजर है एंड वन प्लेयर इज देयर एंड इट इज ट्राइंग टू कट द एल्गोरिदम। ये देखो कट किया है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, ओनली सम कोड्स आर बीन रनिंग एंड सम कोड्स आर नॉट रनिंग। तो ऑटोमेटिकली इट इज कॉल्ड एज ट्री प्रूनिंग टेक्निक, अंडरस्टैंड। एक ट्री को हम थोड़ा थोड़ा कट कर रहे हैं, some part we are keeping and some part we are not keeping, that is called as tree pruning। So diagrammatically also it is very clear। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो it becomes very easy to understand also। तो प्रूनिंग टेक्निक क्या है, तो मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा एज वेल एज छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आपके लिए रखे हैं, so that only the slides are getting increased, no, do not worry about it, but the thing is I wanted to explain all the things in proper order so that it can be very easy for you। रिसोर्स लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया and all the things I have explained very properly। So if you just go through all the slides, automatically you can understand evaluation of a पेसमैन। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अभी मैंने थोड़ा सा ये बड़ा करके गेम करके बताया पेसमैन के लिए। ये जो होते हैं ना, ये आपको बोल सकते हैं कि whenever two you can say, इसको घोस्ट फॉर एग्जाम्पल आई मान के चलो ये घोस्ट है, and if on the both sides if ghosts are there, automatically the game will be getting over, तो ऐसा करके आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट।
why placement curves and uncertain outcomes भी होते हैं, जैसे कि worst cases versus average, तो ये दिखाया गया probabilities हैं and as well as tuning techniques. So all the things are repeated just diagrammatically. मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी है, understanding random goals वगैरह दिखाए, and we can easily understand this. So if you have any other questions other than this, you can just discuss with me now. Other than this, okay. Okay. If you have any questions, please, if you are free to ask me the questions. Other than this, although I will be sharing the slides with you now on your WhatsApp group after lecture, after this lecture, and you are knowing that your examinations will be on the 12th of June. Okay, 12 June को आपकी exam होगी, then you can have, and unit 1, 2, 3 only will be there regarding semester number 2. Right? So all the students of third year as well as final year, they can they have to attend. Third year का तो university exam है आगे, है ना? End sem का, and for year also, for final year also, we will be taking the end sem from the college level. Yeah. Do not miss the examination, because ultimately you are getting the degree from the college as well as third year के लिए from the university, because it is very useful whenever you are going for any of the placements. Okay. So if you have any questions, you can please share with me. Or yes, any student, any questions, or can we end up our today's meeting? Yes. Yes, ऐश्वर्या, अनुपम, ईशा, आपको ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? Yes, any student.